नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत आप सभी का जीवन की पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो ठीक हो और खुश हो। With keeping this theme, let's start with today's video. Before getting into the details of the video, I would like you to watch this short clip of Virat Kohli. Fame, success, money, all these things, they look great when you don't quite have them. But to be honest, that is not the key to happiness. I mean, I could sit here and say that I have all the three, but there are moments where I'm just not happy. I mean, if 10 years ago you would have told me, oh, you'd get all this and you'll be happy. That's not true. Every moment that you're a part of, whether you're with your family, whether you're playing your sport, doing anything that you do in life, or being in the profession that you are, the fact that you can be yourself in that moment is all that matters for the rest of your life. And you have to keep doing it day in day out. You know, we talk about doing the hard yards and doing the putting in the work. Every day you have to put in the work, and being true to yourself is the work for life. And no fame, money, success can get you rid of that, because you have to keep doing it every day, otherwise you're miserable. Okay, अगर आपने इसको अच्छे से देखा हो तो आपको समझ में आएगा कि he is talking that money, fame or success cannot make you happy. I think a person like Virat Kohli doesn't need any kind of introduction. He is known in the entire world for his capabilities and for his performance in the in the world of cricket. Now, if that person is saying he has everything, he has money, he has name, he is very successful in his career. Now, अगर वो इंसान बोल रहा है कि ये तीन चीज़ें जो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम लगता है कि इन चीज़ों से हमें खुशी मिलती है, अगर वो इंसान बोल रहा है कि दिस थिंग्स कैन नॉट मेक यू हैप्पी, देन देयर मस्ट बी सम एंड सब्सटेंस इन इट, राइट? सो आई वांट यू टू आस्क वन क्वेश्चन टू यू पीपल। आप जो भी दिन में चीज़ें करते हो बेसिकली, इरेस्पेक्टिव ऑफ हु यू आर, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप दिन भर पढ़ाई करते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो। इफ़ यू आर अ वर्किंग मैन और वूमन, सो वॉट एवर यू डू इन अ डेली लाइफ, वाई डू यू डू इट? आप ये क्यों करते हो? इफ़ यू टेक अ पॉज एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, यू विल रियलाइज दैट ये चीज़ें हम दिन में सब कुछ जो करते हैं, ये चीज़ हम इसलिए करते हैं, इट्स क्वाइट ईजी, हम खुश रहना चाहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज, हम हम खुश रहना चाहते हैं ऑन अ डेली बेसिस, बट द प्रॉब्लम इज इन टूडेज दिस इज द हैप्पीनेस, एक्चुअली इट्स अ मिस्ट्री दैट एवरी वन इज ट्राइंग टू सॉल्व। हैप्पीनेस एक ऐसा मिस्ट्री है जिसको हर कोई सॉल्व करना चाहता है। बट द प्रॉब्लम इन टूडेज वर्ल्ड, इफ यू सी द इंटरनेट is, there are tons of videos which are available on the internet, on YouTube and Instagram, where every Tom, Dick and Harry is claiming that he knows how to be happy. Every Tom, Dick and Harry is giving the advice about how to live a life, how to be happy. See, happiness is a very broad concept. I will make a separate video on the entire protocol. I'll give you to how to be a happy person. Everything is everything under the happiness. It comes under the topic of positive psychology, science of well-being. So I'll make a separate video. For time being, today I am making a video on happiness chemicals. Now, it's very easy. अगर ये chemicals आपके पास है तो आपको खुश फील होगा, आपको खुशी फील होगी। अगर ये केमिकल्स आपके पास नहीं है तो यू विल नॉट बी हैप्पी। इट्स एज इजी एज ABCD। सो इट्स अ सिंपल इक्वेशन है, केमिकल्स है तो होगा, नहीं होगा, केमिकल्स नहीं है तो यू विल नॉट फील हैप्पी। नाउ आई विल सजेस्ट, आई विल टेल यू द इजीएस्ट वे। इट इज़ हाईली साइंटिफिक बट वेरी इजी टू एग्जीक्यूट इन योर नॉर्मल लाइफ, जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो एंड यू कैन बी अ very happy person. You can add richness, depth and color to your life. So let's start. Uh, I would like to start it with beautiful lines which read, "Your best life is not a place to find, but the path you create along the way." Most of the time we feel that there is a path to the happiness. हमें ऐसा लगता है कि happiness का कोई एक रास्ता होगा जिससे अगर हम चले तो we will be very happy. The problem is there is no way to the happiness, because happiness is the way, क्योंकि happiness ही एक रास्ता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। ऐसा बोला जाता है कि हैप्पीनेस इज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेस। नो, सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ हैप्पीनेस। हमें ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई गोल आप अचीव करना चाहते हो तो इस गोल के पास जाओगे तो आप बहुत खुशी मिलेगी आपको, यू विल बी कम्प्लीटली हैप्पी।
बट द प्रॉब्लम इज हम ये जो जर्नी होती है इसको भूल जाते हैं, एंड रियल हैप्पीनेस कम इज हिडन इन दी जर्नी इटसेल्फ. तो happiness is not a result of the success. In fact, success is a result of happiness. अगर आप खुश हो तो there is a high probability you will able to achieve success in which field you want to achieve. Now let's see happiness chemical. कौन कौन से happiness chemicals है? There are four predominant chemicals which are present in our mind. उसको हम डिटेल में देखते हैं, and I will give the easy protocol जिसको आप how to hack those chemicals, कैसे आप वो chemicals आपके mind में ला सकते हो. Now this is a human mind, and in human mind nearly there are 100 chemicals are present in different proportion. Different अलग अलग proportion में वो chemicals present होते हैं, and उनका proportion अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो जो बोलते हैं कि chemical लोचा हो गया, that is what it is. There are 100 chemicals nearly present in human mind. तो we will see उसमें से सबसे important चार chemicals है जिसको happiness chemicals बोला जाता है. So we will see that. Let's start. First is your dopamine. Most all of you must have heard about it. The problem is सबको लगता है कि dopamine is all about related to rewards and the feeling you get when you achieve something. Yeah, but it is more about motivation and drive. अगर आपको motivated feel नहीं होता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, it's only because you lack dopamine. डोपामिन इज अ यूनिवर्सल करेंसी. अगर ऐसा बोला जाता है कि डोपामिन इज अ यूनिवर्सल करेंसी, मतलब इतना इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के इन आवर ह्यूमन लाइफ. डोपामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज इन योर माइंड, एंड ये बिहेवियर को आपके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. तो बेसिकली अगर आप कोई भी गोल सेट करते हो आपका, तो व्हेन यू गेट दैट फीलिंग, आप जब सोचते हो कि आई विल अचीव दैट, उसको फोड़ दूंगा, उस गोल को पूरी तरीके से अचीव करूंगा, तो वो जो फीलिंग आता है आपको, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ डोपामिन. सो द प्रॉब्लम इज हम गोल तो सेट कर देते हैं, बट वेरी फ्यू times we are able to achieve that goal, that hit that target with a bull's eye. So proper precision के साथ हम उसको hit नहीं कर पाते हैं. So simply it's only normal. I have made a separate video on the science of scientific tool to set and achieve every goal. I highly recommend you to go and watch it. मैंने वहाँ पे scientific protocol दिया है कि कैसे आप goal set कर सकते हो, and you can increase the probability of hitting your target with a bull's eye. Now simply याद रखो, हमेशा कोई भी गोल सेट करते हो तो ऑलवेज स्ट्रैटेजी इज थिंक बिग, एक्ट स्मॉल. अगर आप यहाँ से सीधा कोई ऐसा गोल सेट करते हो जो आपकी औकात के बाहर का है, दैट्स नॉट गोइंग टू अचीव. सी पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. पॉजिटिव रहना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, इट्स फाइन, बट यू नीड टू बी प्रैक्टिकल. यहाँ अगर आपकी काबिलियत ही नहीं है यहाँ पे जंप करने जाओगे तो नहीं होगा. तो सिंपली व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू वर्क ऑन अ डेली बेसिस. आपको डेली बेसिस के ऊपर, दिस ब्रिक्स आर नथिंग बट योर रूटीन. डेली बेसिस के ऊपर जो भी आप काम करोगे, विच विल हेल्प यू इन स्मॉल स्टेप्स, यू विल बिल्ड एंड यू विल वन डे यू विल एबल टू अचीव योर गोल. सो सिंपली याद रखो, कोई भी गोल सेट करने से पहले थिंक बिग, एक्ट स्मॉल. Now the importance of small action, I would like to, it's fine, you can go through that clip. Now the thing is, she is a, you can see over here, Anna Linke. She is an American psychiatrist. She is also chief of Stanford Addiction Medical Dual Diagnosis Clinic at Stanford University. She is a world-renowned figure in the field of addiction, कैसे होता है, क्या होता है, and all those things. She is a psychiatrist also, and she is heading a division in Stanford School of University, Stanford University में. Now उसका एक बुक है, इनफैक्ट उसका एक सेंटेंस काफ़ी बहुत फेमस हुआ था, that the smartphone is a modern day hypodermic needle delivering a digital dopamine 24/7 for a wired generation. इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉब्लम इज डोपामिन इज गुड, नो डाउट एट ऑल, बट अगर वो ज़्यादा लेवल पे हो गया, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, इट लीड्स टू द एडिक्शन. एंड द प्रॉब्लम इज द टूडेज जनरेशन इज डोपामिन सबसे ज़्यादा अवेलेबल, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ सेल फोन्स. तो आपको बेसिकली वॉट एवर यू वॉच ऑन द सेल फोन, इस 24 आवर्स अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हो तो यू आर गेटिंग अ डोपामिन अ लॉट. तो प्रॉब्लम इज डोपामिन का प्रोपोर्शन एक लिमिट में रहा तो इट्स गुड, अगर वो ज़्यादा वेरी हो गया तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, यू मे लीड एडिक्शन वगैरह होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू मेंटेन अ बेसलाइन डोपामिन, मतलब ऐसा कौन सा लेवल पे, ऐसी कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं जहाँ पे हम डोपामिन एक हेल्दी लेवल में अपने माइंड में रख पाए. सो दिस आर वेरी सिंपल एक्टिविटी.
first and the foremost important of all, it is nothing but the sleep. If you don't take a proper rest, you might have seen me emphasizing a lot on sleep and good amount of rest, because this is the one of the pillars of your health. अगर आप ढंग से सोते नहीं हो तो it will create a lot of problem. I have made a separate video on the sleep and it's important. You can go and watch over there how to why to sleep and what is its important in education system, and हर एक के लाइफ में उसका importance क्या है. So make sure that you take a good amount of rest. रिकमेंडेड आवर्स इज 7 to 8 hours ऑफ स्लीप. अभी उतना भी लोग नहीं ले पा रहे हैं. इट्स ओनली बिकॉज वी आर गेटिंग मॉडर्न, बट मॉडर्निटी के साथ कहीं ना कहीं वी आर लूजिंग द एंशियंट बैलेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी. सो फर्स्ट टूल इज गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट. अगर आप रेस्ट ले पा रहे हो अच्छी तरीके से, यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ डोपामिन इन योर माइंड. सेकेंड इज देर इज समथिंग कॉल्ड योगा निद्रा. इसे योगा निद्रा बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन स्लीप डीप रेस्ट, NSDR, या स्लीप योगा भी बोला जाता है. नाउ रिसर्च शोज ऑल यू नीड टू डू, अगर आप ये परफॉर्म करते हो NSDR नॉन योगा निद्रा, तो आपका देर इज अ रिसर्च विच शोज कि डोपामिन का प्रोपोर्शन है वो आपका हेल्दी वे में बढ़ जाता है, एंड यू गेट अ हिट ऑफ अ स्पाइक इन द डोपामिन. सो ऑल यू नीड टू डू, कहाँ से करना है, सिंपली जस्ट डाउनलोड दिस ऐप वेकिंग अप पे जाके यू विल गेट द स्क्रिप्ट्स. ऑल यू नीड टू डू, पुट अ हेडफोन इन योर ईयर्स एंड जस्ट लिसन टू द स्क्रिप्ट. जैसे बोलते वैसे बॉडी स्कैन वगैरह करते हो तो यू विल गेट अ स्पाइक इन योर डोपामिन. और एल्स जस्ट गो ऑन द यूट्यूब पे जाके आप अगर योगा निद्रा टाइप करोगे या NSDR टाइप करोगे, नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब. ऑल यू नीड टू डू, उसको सुनना है, उसमें जो बताया जा रहा है वैसे परफॉर्म करना है. यू विल गेट अ स्पाइक इन योर डोपामिन. थर्ड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज सनलाइट. ओके, सनलाइट इज इम्पॉर्टेंट. अगर आप सनलाइट नहीं लेते हो तो इट मे कॉज नंबर ऑफ problems in your eyes as well as in your entire mind. So make sure that whenever you take a sunlight, whenever you go outside, especially in a cloudy atmosphere, अगर cloudy है तो make sure that you are spending 15 to 20 minutes in the outside environment जहाँ पे आप sunlight आपके आंखों को मिल रही है. Normally you can 10 to 15 मिनट्स आप नॉर्मली देख सकते हो. देयर इज नो नीड टू स्टेयर एट द सन. सूरज की तरफ घूर से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट में डैमेज योर आईज. द ओनली थिंग, आप इधर सनलाइट में जाओ, यू विल गेट द सनलाइट इन योर आईज. यस, यू कैन ब्लिंक योर आईज, आप ब्लिंक कर सकते हो. देयर इज नो नीड टू स्टेयर इट. सो नॉर्मली यू विल गेट द सनलाइट एंड इट विल गिव यू द स्पाइक इन योर डोपामिन. नेक्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दैट इज एक्सरसाइज. एक्सरसाइज अगर आप करते हो, नॉर्मली वेट लिफ्टिंग या फिर कार्डियो एक्सरसाइजेज, एनी अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज इफ यू डू, you will get a spike in your dopamine. Why you need to do the exercise? I have made a separate video on that. Recently I was going through the one research of the Harvard University. In that it was said that every 1 hour of exercise increases your lifespan by 3 hours. You can see, अगर 1 घंटा अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो तो उसका आपके लाइफ टाइम के ऊपर, लॉन्जिटिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं. 1 घंटा एक्सरसाइज करने से आप 3 घंटा आपका लॉन्जिटिविटी बढ़ जाएगा, आप 3 घंटा आपकी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा. तो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू डू इट. इनफैक्ट इन द सेम रिसर्च इट वॉज गिवन, अ पर्सन हु इज स्मोकिंग, कोई इंसान जो स्मोकिंग करता है या ड्रिंकिंग करता है या किसी भी तरीके का एडिक्शन है, बट अगर वो एक्सरसाइज करता है तो वो ऐसे इंसान से जो ये स्मोकिंग भी नहीं करता है, ड्रिंकिंग भी नहीं करता है, बट एक्सरसाइज नहीं करता है, उससे ज़्यादा जिएगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे. मतलब अगर आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो और एक्सरसाइज, और अगर आप ओवरवेट भी हो तो भी चलेगा, बट यू नीड टू डू, मेक श्योर दैट यू डू द एक्सरसाइज. अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आप ज़्यादा जियोगे, यूर लॉन्जिटिविटी विल बी लॉन्ग, आपका लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द पर्सन हु इज हु डोंट स्मोक, who who don't drink, who is not overweight but who doesn't exercise or who doesn't work out. तो उसके कंपैरिजन में आप ज़्यादा जियोगे. दिस इज वन पॉइंट I am not suggesting the message that you should drink or smoke or anything like that. The only thing I am emphasizing the importance of exercise. Okay, this is not the justification कि यार स्मोकिंग करना चाहिए, ड्रिंकिंग करना चाहिए, एक्सरसाइज करेंगे तो वो सब न्यूट्रल हो जाएगा, ऐसा नहीं है. इट्स ऑलवेज बेटर नॉट टू डू एनीथिंग ऑफ दैट.
Next is your cold exposure. Number of research papers are available in the European Journal of Psychology. I was going through that. When you expose your body to the cold water, you get a spike in the dopamine, and especially how cold it should be. It should be cold enough that you feel uncomfortable. आपको uncomfortable feel होना चाहिए. There should be shivering in your body, and there should be shortness of the breath. आपकी सांस फूलना चाहिए. But it should not be cold enough that you hurt yourself. Okay, it should be cold enough that there is a shortness of the breath, but it should not be cold enough that you hurt yourself. तो वैसा अगर कोल्ड एक्सपोजर आप करते हो आपके बॉडी को, तो यू गेट अ स्पाइक इन योर डोपामिन. इनफैक्ट कोल्ड एक्सपोजर से तो डोपामिन ही नहीं, आपका इपिनेफ्रिन भी मिलता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन. एसिटोकोलिन भी मिलता है, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन. तो कोल्ड एक्सपोजर हैज़ अ मल्टीपल बेनिफिट. In fact, it's a kind of therapy. Now, these are the sources of cheap dopamine as well as real dopamine. The problem is cheap dopamine को हम क्या बोल सकते हैं? सस्ता नशा. ये एक सस्ता नशा है. बेसिकली आपको पता भी नहीं चलता है, आपको लगता है कि आपका माइंड बोलता है कि यहाँ से आपको खुशी मिलेगी, बट दीज आ ये ऐसी चीज़ है, ये आपको खुशी तो छोड़ो, ये एडिक्टेड बना के आपका पूरा हेल्थ खराब कर देगा. लाइक वॉचिंग अ वेब सीरीज, अल्कोहल ड्रिंकिंग, जंक फूड, ड्रग्स, सोशल मीडिया, ये जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो आप, गैम्बलिंग, these are the sources of cheap dopamine. cheap dopamine is like एडिक्शन लग जाता है उस चीज़ का, और आपका पूरा हेल्थ खराब हो जाता है. दिस इज द रियल डोपामिन. ये अगर आप करते हो, ये चीज़ें अगर आप करते हो, तो आपका जो डोपामिन वो हेल्दी डोपामिन रहेगा. अगर नशा ही करना ही है तो सस्ता क्यों करना है, अच्छा खासा करो. गो फॉर द न्यू एक्सपीरियंसेस, वर्क ऑन योर गोल, टेक अ गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट. सी, टेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन हैविंग अ फन. आपको लगता है कि पार्टी करने से आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी? नो. टेक अ गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट, आपको ज़्यादा उससे कहीं ज़्यादा अच्छा डोपामिन मिलेगा rather than going outside and drinking alcohol and junk food. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. एक्सरसाइजिंग, ये रियल डोपामिन है जो आपको लॉन्ग टर्म में खुश रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर. So simply, when a person has no purpose, he distract himself with the cheap dopamine. In fact, सिंपल बात है, अगर आपके लाइफ में कोई भी ऐसी मीनिंगफुल चीज़ नहीं है, आपका बेसिकली अगर उसे इन जापानीज इट्स कॉल्ड इकिगाई. अगर आपके पास कोई इकिगाई नहीं है, देयर इज नो पर्पस इन योर लाइफ, देयर इज ऐसी कोई चीज़ नहीं है विच ड्राइव्स यू, विच मोटिवेट्स यू टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट योर डे, तो बेसिकली यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड बाय द चीप डोपामिन. अल्कोहल, उसके बाद गैम्बलिंग, जो वेब सीरीज देखना, जंक फूड, इससे क्या होगा? ना ही आपको लगेगा कि उससे खुशी मिल रही है, बट समवेयर एट द बॉटम ऑफ योर हार्ट, बैक ऑफ योर माइंड, डीप डाउन इन योरसेल्फ, यू नो कि आप अंदर से खोखले हो. दिस इज द रीजन मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ इट. नाउ नेक्स्ट इज सेरोटोनिन. सेरोटोनिन को क्या बोला जाता है? मूड स्टेबिलाईजर. इसे इट सेरोटोनिन बेसिकली आपको कब मिलता है? इट्स अ मॉलिक्यूल व्हेन यू फील when you get a feeling of proud, you feel proud of yourself basically. when you get a social recognition in the society, आपको जब सोसाइटी में कोई रिकग्निशन मिलती है, आपको रिस्पेक्ट जब मिलता है सोसाइटी में, तब वो सेरोटोनिन आपको मिलता है. एंड यू लाइक एवरी लाइक ऑन योर सोशल मीडिया बेसिकली. आप कोई फोटो अपलोड करते हैं, उसको जो भी लाइक, कमेंट, शेयर जो भी मिलते हैं, शेयर किए जाते हैं, तो यू गेट दैट सोशल रिकग्निशन. आपको लगता है कि या पीपल आर रिकग्नाइजिंग मी, पीपल आर गिविंग मी द रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, और तब आपको मिलता है सेरोटोनिन. एंड दैट्स वाई लोग जब फोटो अपलोड करते हैं तो 10 बार चेक करते हैं कि मेरे को कितने लाइक मिले, कितने कमेंट्स मिले, क्या मिले. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ सेरोटोनिन. ये सब सेरोटोनिन की वजह से. सेरोटोनिन इज अ मूड स्टेबिलाईजर. एंड लेट्स सी द what activities you can do to spike your serotonin. So first and the most important is nothing but your meditation. When you sit and learn to meditate, when I say this, I don't want to imply कि आंखें बंद करके बैठना is a meditation. There is a meditation is a very vast topic. Make sure that you go through that. अगर आप meditate करते हो, you will get a spike in your serotonin. It will help you to stabilize your mood. नेक्स्ट, सनलाइट. सनलाइट मैंने डोपामिन के लिए भी कहा था, इसके लिए भी सनलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सिंपली याद रखो, मोस्ट ऑफ द टाइम बोलते हैं कि वी आर कनेक्टेड विद द नेचर. नो, वी आर नॉट कनेक्टेड विद द नेचर, वी आर द नेचर. हम ही नेचर है.
जिस एटम से मॉलिक्यूल से नेचर बना है, उसी से हम मॉलिक्यूल बन उसी एटम से हम बने। द ओनली डिफरेंस इज अरेंजमेंट इज डिफरेंट, दैट्स द ओनली थिंग। सो एक्सपोज योर सेल्फ इन द नेचर, जितना ज़्यादा नेचर में टाइम स्पेंड करोगे, योर मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ विल स्काई रॉकेट। Next, walking in a nature, again same reason, we are not connected with the nature, we are the nature. अगर आप नेचर में घूमते हो, गार्डन्स वगैरह में घूमते हो, तो यू मे फील, आपको अच्छा लगता है, जो भी स्ट्रेस वगैरह फील हो रहा है, आपका मूड स्टेबलाइज होता है, योर इमोशनल मेकअप बिकम्स गुड। नेक्स्ट, रनिंग, अगर आप मॉर्निंग में रनिंग वगैरह करते हो, जॉगिंग वगैरह करते हो, तो आपको सेरोटोनिन, यू गेट अ स्पाइक इन द सेरोटोनिन। स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो, तो आपको ये एक्टिविटीज़ करने से आपको सेरोटोनिन मिलता है, एंड दिस इज द रियल हैप्पीनेस। ये इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन बोलते हैं, इट्स अ लव हार्मोन। बेसिकली यू गेट इट व्हेन, जब आपको व्हेन यू कम इन कांटेक्ट विद योर लव्ड वंस, फैमिली वगैरह, जिनसे आपको अफेक्शन होता है, इंटीमेसी होती है, जब उनसे अगर आप बात वगैरह करते हो, तो यू गेट स्पाइक इन योर ऑक्सीटोसिन। तो एक्टिविटीज़, कौन सी एक्टिविटीज़ करने से ऑक्सीटोसिन मिल सकता है आपको? प्लेइंग विद द एनिमल्स, अगर आप एनिमल्स के साथ खेलते हो, तो यू गेट द ऑक्सीटोसिन। उसके बाद प्लेइंग विद बेबीज, छोटे बच्चों के साथ खेलने से आपको बहुत ज़्यादा ऑक्सीटोसिन मिलेगा, यू विल बी वेरी हैप्पी। छोटे बच्चों के साथ जब खेलोगे, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। एंड ऐसा बोलते हैं कि चाइल्ड इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी ट्रू, व्हेन यू प्ले विद देम, you get a lot of happiness. In fact, that happiness is because of oxytocin. Next, when you hold hands, when you hold your hand of your loved one, जिनके साथ आपकी इंटीमेसी है, अफेक्शन होता है, उनका जब आप हाथ पकड़ते हो, तो बेसिकली इट्स अ लव हार्मोन। So a person with whom you love, when you come in contact with that person, you get oxytocin. While hugging, when you hug to the person whom you love, जिनके साथ आपका इंटीमेसी है, अफेक्शन है, उनके साथ when you hug them, you get a oxytocin. अब जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिसिएशन इज आल्सो द ऑक्सीटोसिन। नाउ नेक्स्ट इज एंडोर्फिन। एंडोर्फिन इज अ पेन किलर। एंडोर्फिन का सिर्फ एक काम है, इसका एक काम है, इट मास्क पेन विथ प्लेजर। पेन को प्लेजर में कन्वर्ट करना ही ऑक्सीटोसिन का काम है। बेसिकली ऑक्सीटोसिन, जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, उसके एक्सरसाइज करने से पहले आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल ना करें, बट करने के बाद जो फीलिंग हो आता है आपको, दैट इज एंडोर्फिन। कोई भी दर्द दर्द को उसको खुशी में बदलना, दैट इज नथिंग बट एंडोर्फिन। सो एंडोर्फिन कहाँ से मिलता है? बेसिकली आपको व्हेन यू लाफ, जब आप हंसते हो, यू गेट एंडोर्फिन। सो मेक श्योर दैट यू लाफ एज मच एज यू कैन। नेक्स्ट इज ईटिंग डार्क चॉकलेट्स। डार्क चॉकलेट्स खाने से आपको एंडोर्फिन मिलता है। में याद रखना कि इट शुड बी द डार्कर द बेटर, जितना डार्क रहे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। डार्कनेस, अमूल का एक चॉकलेट आता है, उसका 75% डार्कनेस रहता है ऑलमोस्ट। इफ जितना डार्कर उतना अच्छा रहेगा, यू विल गेट अ गुड एंडोर्फिन, यू विल गेट एंडोर्फिन इन अ गुड अमाउंट, मतलब वो अच्छे हेल्दी क्वांटिटी में आपको एंडोर्फिन मिलेगा। नेक्स्ट, एक्सरसाइज। आई हैव टोल्ड यू एक्सरसाइज इज नॉन निगोशिएबल। स्लीप, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये चीज़ें नॉन निगोशिएबल, ये चॉइस नहीं है, दीज आर द मस्ट टू डू एक्टिविटीज, वो आपको करना ही पड़ेगा। एक्सरसाइज जब करते हो, यू गेट द एंडोर्फिन। Okay, that's it for today, guys. I hope you like this video. If you like this video, make sure that you like the video. You can subscribe my channel. Don't forget to share it. Siddhant Life School. This is my Instagram channel. You can connect with me through the Instagram also. Thank you, guys. Thanks a lot. That's it for today. Have a great evening ahead.